है लेकिन but you are on my watch list. Okay, so let me introduce myself. My name is Fazal Hamid. I'll be here. Here. Ji, please turn off your microphone. जिसका भी microphone on है off कर दे, please. Okay. So my name is Fazal Hamid. So I will be teaching you the course of the embedded system. So I did my PhD from Karlsruhe Institute of Germany, Karlsruhe Institute of Technology, Germany, and then I did my postdoc there for 3 years, and I'm here in IST for the last 3 years. And if if you have any question pertinent to the course, you can drop me a message or something like that. So let me introduce with the embedded system. Do you have any idea? Anybody of you have any idea what an embedded system is? जी बताएं बेटा. सर स्क्रीन थोड़ी जूम इन हो सकती है, सही से नजर नहीं आ रहा है सर. जी सर. जी अली नकवी, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? सर शो हो रही है लेकिन सर थोड़ी जूम कर देंगे तो सर साफ नजर आएगा. अब स्क्रीन नजर आ रही है? ये ब्लैंक है, स्क्रीन इज ब्लैंक. नहीं सर, वो एम्बेडेड सिस्टम का जो आपने लिखा हुआ है वो वहां तक आ रही है, लेकिन थोड़ा जूम. सर स्क्रीन शो हो रही है, जूम इन कर दें थोड़ी सी सर. आई सेड वीक है तो वो सही नजर नहीं आ रहा, वर्ड ज्यादा छोटे छोटे शो हो रहे हैं सर. ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ. अब ठीक है? यस सर. ठीक है, मैं सिर्फ अब बता रहा हूँ. अगर कोई वेरी गुड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई मसला है तो यू कैन इंटरप्ट मी एट एनीथिंग. ओके, सो डज एनीबॉडी हैव एन आइडिया व्हाट एन एम्बेडेड सिस्टम इज? जी, किसी को कोई आइडिया एम्बेडेड सिस्टम? माइक्रो प्रोसेसर के रिलेटेड सिस्टम वगैरह में होगा. लाइक जैसे रेफ्रिजरेटर के, माइक्रोवेव के, टॉय कार्स के, सर बिल्ट इन सिस्टम. Very good, very good. Okay, so I'll briefly elaborate. Okay, so embedded systems are the devices that are typically employed in our household appliances. Okay, so these are the devices that are typically employed in our household appliances. Okay, so what are the main components? What are the main components of the embedded system? And can you briefly elaborate what are the main component of an embedded system? Anybody? Say inputs, outputs. Very good, to some extent. Yes, you're right. जी और कोई चीज? Power sources, Circuits, operational functions. memory. Yes. So the main components of an embedded systems are, if we typically elaborate, so we can say that the main components of an embedded systems are sensors. You can also take it because you can take some input from the environment. So sensors. Okay. So the main components of an embedded system is actuator. So it is typically an output. I will explain this. Okay. Output. It is an output. Like there are some inputs and an output, and there is some processor. Okay. There is some processor that is taking a decision based on these things. Taking a decision. So there is also some process. And memory. Yes, you also have a processor to take a decision. Then you have like a memory to store data. ठीक है, you may have also some memory to store the data. अच्छा ये बताएं कि अब पहले तो ये हमने डिफरेंट जो है ना वो किया हुआ है ना, and I will then draw a very small embedded system example. So let's assume I will draw in very small. So now let's assume this is a very classical embedded system block diagram. So you have some sensor. Sensor gives an output to
A processor. The output of the sensor is output to a processor, and it is being again fed to an actuator. Okay, so what is a sensor? Can anybody elaborate what is a sensor? Sir, anything that detects a change in the environment. That is very good. So sensors. So we can say that sensor. The sensor. So I will elaborate. Sensor gets an input from the environment. Yes, you are right. G. Sensor gets an input from the environment. And what are the different examples of sensors? Can you give some examples of sensors? What are examples? Sir, temperature fire alarm, sensor, heat light sensor. sensor. Temperature sensor, yes. Temperature sensor, ठीक है. Pressure sensor, or fire alarm. Signal, something. Actually, sensor is a device that gets an input from the environment. Okay. And what is an actuator? G. What is an actuator? So which gives us some output. Yes, gives you some output, but it also actuates some output. So what is a classical example of an actuator? What is the classic? G, anybody? G. So it may be a fan like controlled by temperature. Yes, it may be a fan, but can you give me some like concrete output? Fan. Sir, that converts energy into motion. Yes, Sir, is motor. it electric? Yes, motor. Electric motor. Yes, electric motor. Yes. So motor is also a classical example. So example is motor. So actually, the motor is an example. So example is, and it gives some output and it is actuating some output or something like it. And then you know that processor is taking a decision, and we also may have some memory to store some intermediate data. We will elaborate these things in more and more details later on. But at this point of time, what we are going to only understand the embedded system at a very layman level, so that you can understand the concept of an embedded system. Okay, what are different examples of embedded system? What are different applications? What are different examples of embedded system or some appliances that we use? So, G. Sir, refrigerators. कितना साइज है? 18 ठीक है, 18 कर देते हैं. 18. जी, what are different examples of an embedded system? जी बता सकते कोई बंदा? Sir, refrigerators, microwaves. इस तरह की चीजें शायद. Good. Sir, calculator. Embedded. Sir, our embedded systems are related with robotics. Yes, why not? Robotics is also an example of an embedded system. So, what are different examples of embedded system? So, embedded systems examples हैं, automatic door. ठीक है, I will explain one by one. ठीक है, आपकी automatic door है, air conditioning system. Embedded system, microwave oven. Another example is an example of an embedded system. Security system भी हो सकता. Yes, it can be line tracking robot. Line tracking robot. Digital watches. Yes, digital watches. But I will explain these one by one. Like whatever I'm writing, I will. So your examples are also right, but I will explain these one by one in terms of sensor, processor, and actuators. I will explain this one by one. Okay, that how sensor works and how different typical embedded system work without going into the detail. But fuel tank. I will explain one by one. I will explain it one by one. Fire alarm. Example. Fire alarm, yes, this is also one example. Missile system. Okay.
is also some kind of an examples of an embedded system or 7-segment display. Okay, so first I will start with an automatic door. Okay, so if you look if you enter into block 6 of IST, okay, so there is an automatic door. Did you see that automatic door? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. how it works? How it works? सर जैसे ही कोई मतलब करीब पहुंचता है डोर के तो वो डिटेक्ट करके ओपन कर लेता है फौरन। डिटेक्ट कैसे डिटेक्ट करता है? What can be the underlying bro. principle object Sound detection से, sir. mechanism? Sound से? Light This से is sir, सर light से proximity pressure. sensor light sensor. proximity sensor use करते हैं अच्छा, this can be one example. I don't know that how they have designed it, but this can be one example. So maybe there is a reason. डिस्टेंस का फार्मूला लगता है कि Proximity sensor is a very good example. आपने जिसने proximity sensor का कहा है वो it's also. But one example can be something like this. So it can be something like this. So there is a one sensor. So I will start with an automatic door. Okay, so I will start with an automatic door and how it may work. मतलब this can be one example. This can be an example. ठीक है? Automatic door. Now you are using. सर ये एक चीज क्लियर करते हैं, जो मेमोरी आपने बताई थी, मेमोरी मतलब कोई भी हो सकती है, जिस तरह रैम वगैरह हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किसकी एग्जांपल देनी है? आपकी आवाज automatic door. ठीक है? I'm now teaching like automatic door, elaborate automatic door. So this is now in automatic door. सिर्फ वो एक चीज काइंड बता दें कि मेमोरी का जो आपने पहले बताया था वो रैम वगैरह उस तरह की मेमोरी जिस तरह हम पहले पढ़ते हैं, रैम वगैरह इस तरह। Yes. RAM, it can be RAM, it can be ROM, it can be any kind of memory. Okay sir, thank you. It can be a flash memory, it can be USB, it can be any kind of memory. ठीक है? But it's not necessary. Like even a processor has a memory. You have a register file, and we will study this in more detail. अब मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही स्मॉल लेवल पे है, क्या इसमें डिटेल्स हम नहीं जा रहे. We are studying this at a very high level, and then we will dig into more detail at a later point of time. ठीक है बेटा? Okay, so now in automatic door में क्या होगा? Now let's assume I will give this an example. So now this can be a scenario that you can have two sensors. So this is a transmitter. This can be a transmitter. And now you have another sensor on the left side or right side transmitter, and then you can have a receiver. And in this scenario, the transmitter may be transmitting an infrared signal to the receiver. This is one example. This is one way that you can design this automatic door. So actually, what's doing that when anybody interrupts this receiver, so actually the receiver will not receive the signal, so it means that somebody is entering into the system. So now you have sensors. So now in this example, automatic door, you have sensor. We have two sensors. One is the transmitter and one is the receiver. Transmitter is transmitting a light and receiving that light. When the receiver is receiving the signal, it means that nobody is passing through this gate, so the door will be closed. And whenever the signal will be interrupted, so it means that the process is not taking a decision. Okay, somebody has interrupted because I'm not receiving the light signal. I'm not receiving the light signal. So it will actually activate the sensor to, okay, please turn on the door or make the door open. And when there is no activity, for 5 seconds or 6 seconds, so actually you have to close the door. Actually, the door should be closed for some time, some duration. So what are different design parameters? So it means that for how long. So the design parameters can be like this: for how long the door will be. So these are different design parameters. Okay, so these are design parameters for how long the door will be open. Other design parameter can be, so okay, when to close the door. Okay, so these are the design parameter. Which type of motor you will use? Which type of motor you will use? Which type of sensor you will use? बेटा समझ आ गई या नहीं ऑटोमेटिक डोर की? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन?
ना कोई सर अभी आपने यहाँ पे लाइट सेंसर की एग्जांपल दी थी, वैसे यहाँ पे कोई भी मतलब किसी किस्म के भी सेंसर्स यूज किए जा सकते हैं? Yes, it's a way that how you design a system. Actually, the in embedded system, you will get the specification from the user. When you get the specification from the user, then based on your experience and things like that, then you will say, okay, how can I design that? You can use the transmitter, and you can use a light sensor. You can also use a proximity sensor, or you can use any other kind of a sensor. You can also use some kind Okay, of sir. weight sensor. Okay, actually, when somebody will put the foot on some kind of a sensor, so the sensor will detect if somebody is now there is a weight on thing, and then it will open the door. There can be various strategies to design a system. But this is only just one example. बेटा समझ आ गया आपको? Yes, sir. Any question? Yes, sir. Excuse me, sir. Okay, now we proceed further. Excuse me, sir. जी बताएं बेटा. सर ये प्रोसेसर के इसमें बता दे, प्रोसेसर का क्या यूज है? Processor, okay, processor is taking a decision. Processor is taking a decision based on the input. Okay, and the processor is taking a decision. हो सकता है अब प्रोसेसर के अंदर क्या हो सकता है? अब इस एग्जांपल में अगर हमने ये कहा है कि जो है ना we want to make the door open for 10 seconds. तो 10 सेकंड को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? जी बताएं बेटा. तो सर ये चीज मेमोरी में नहीं आ जाएगी, कितने टाइम के लिए करना है हमने? नहीं, प्रोसेसर वो तो आपने कोड लिखना है ना. आपने कभी C++ की प्रोग्रामिंग की है बेटा? जी सर. तो स्लीप 100 कर देंगे, स्लीप 100 उसको कोड दे देंगे भाई स्लीप कर दे, जैसे आर्डुइनो में वो आर्डिनो में जो स्लीप की कमांड यूज करेंगे या इस तरह की चीजें, उसमें से ये होगा इट अ वेरी स्मॉल लेवल. यू कैन यूज अ काउंटर. नहीं समझे बेटा? लेट्स अज्यूम दैट यू आर यूजिंग अ काउंटर. ठीक है, and let's assume the count if the counter value is 5, so it means it will provide you a delay of 1 second. अगर आपको 100 सेकंड का डिले चाहिए, 10 सेकंड का डिले चाहिए, तो काउंट को किस वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे आप? 50 से सर. 50 से. So actually the processor is taking this decision, and you can also maintain a counter. You can also maintain a counter in your system, and in a processor there is also some capability, like in most of the embedded systems there are some internal counters, and you can use that internal counters. And even within the processor we have register. Register is also a type of storage. You can store the data in a register. You can have a while loop or something like. We will study this detail in more detail in later on. But what's the job of a processor? The processor take a decision based on the specification, and you have to write a code for that. And maybe you have done some programming in C or C++. So we will also do some similar kind of programming in assembly, and we will study this in more detail. जी बेटा, आपकी query answer हो गई? Any question? जी सर ये ठीक है. सर इसमें ये पूछना था कि अब इसमें हमारे पास इनपुट तो आ जाएगा, सेंसर आ जाएगा, आउटपुट पे हमारा डोर ओपन हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल. It's a very simple example, but we can have more sophisticated embedded system. I'll come later on. I will come later on that. ठीक है बेटा? Excuse me सर. जी बताएं बेटा. सर काइंडली ये थोड़ा इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दे, कोई माइक म्यूट कर रहा है बार बार. कौन कर रहा है बेटा? अच्छा ये बात याद रखें, मेरी बात सुने. एक बात मैं सबको ये बबांग के दहल बता रहा हूँ. पंगे करोगे ना तो ग्रेड आपके नीचे आएंगे. मर्जी है आपकी, जो करना है करें, करना है करें. अगर आपको कोई माइक बेटा म्यूट कर रहा है, मुझे आप अपना नाम बता दें. ठीक है, और मैंने अगर किसी को पता चल गया ना, बहुत बुरा होगा. आई एम वेरी सॉफ्ट बट आई एम आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. आप बेशक पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ लीजिएगा. ठीक है, तो आप लोगों की अपनी जो है ना आपके हाथ में है. आप 18 साल से ऊपर के हैं और इस तरह की अगर बच्चों वाली हरकतें करेंगे तो फिर मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे. प्लीज डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज चाइल्ड एंड डोंट फोर्स मी, प्लीज. इट्स माय रिक्वेस्ट. ठीक है बेटा? तो याद रखें, अगर आप किसी ने अभी किया तो मुझे बता देना. इफ समबडी इज डूइंग दिस, और मुझे अगर पता चल गया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा. एंड प्लीज बिहेव योरसेल्फ. अच्छा सर एक क्वेश्चन था कि ये कोई भी एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो सिर्फ एक ही टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकता है या वो सेवरल डिफरेंट टास्क्स भी परफॉर्म कर सकता है? It can perform many tasks. Why not? It can perform many tasks. If सर you ये see जिस तरह हमारे कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं घर में, वो भी एम्बेडेड सिस्टम्स आते हैं?
अच्छा देखिए, अगर आप इवोल्यूशन देखें एम्बेडेड सिस्टम के, ठीक है, अच्छा इनिशियली योर मोबाइल फोन वाज परफॉर्मिंग ओनली अ सिंगल टास्क, दैट्स टू सेंड अ मैसेज और टू मेक अ कॉल। अब जो मोबाइल फोन की क्या नाम है कैपेबिलिटीज बढ़ गई है या नहीं बढ़ी? बढ़ गई हैं सर, काफी बढ़ गई हैं। Definitely. So actually it also depends upon it how simple your embedded system is and how complex your embedded system is. ठीक है? So an embedded system can perform a single task and it can perform a multiple task. Simply initially when with the advent of these phones, so actually these phones was only used to send some text messages or to make a calls, but now phones can also perform some complicated tasks. There's also a calculator in it. Earlier you had a separate embedded system, as a calculator was a separate embedded system. You have now even a clock on your phone, and now you can make a calendar, you can use it as a also as a screen. ठीक है जी, any question? Should I proceed further now? यस सर, एक क्वेश्चन। यस सर। जी बताएं सर एक क्वेश्चन है बताएं बताएं बेटा। सर, सर ये एक जो क्वेश्चन आपने ये था लिखा कि हुआ है विच टाइप ऑफ मोटर यू विल यूज, तो सर हम्म, इसका बता दें कि इसमें क्या होगा। जिस तरह आपने अभी उसका सेंसर्स का बताया है, तो इसमें मोटर का क्या काम है। अच्छा अब ये बताएं कि स्टेपर मोटर यूज करना है और कौन कौन से मोटर्स यूज होंगे? स्टेपर मोटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोटर। यस सर। ठीक है, इस तरह के जो मोटर्स हैं, कौन से मोटर्स आपने यूज करने हैं वो आपने जो है ना वो लेकिन जब व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन अ सिस्टम, तो फिर आपने एक पूरा सर्वे करना होगा ना, पूरा सर्वे करना होगा कि मार्केट में कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल है, कौन, अच्छा उसमें से फिर देन देयर आर वेरियस ट्रेड ऑफ्स। अच्छा कौन सी डिवाइस है वो एक्सपेंसिव है, कौन सी चीप है, आपका बजट कितना है। तो ये जो सारे डिसीजन है ये बेसिकली एक्चुअली विच टाइप ऑफ मोटर वी विल यूज, द डिटेल्स ऑफ दिस मोटर विल बी स्टडीड लेटर ऑन। विच टाइप ऑफ मोटर वी विल यूज, इट्स अ डिजाइन क्वेश्चन। समझ आई बेटा? एंड वी विल स्टडी दिस इन मोर डिटेल लेटर ऑन। एनी क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन है कोई? यस सर। सर बताएं बेटा। हमारे कंप्यूटर्स वगैरह तो एम्बेडेड सिस्टम्स में नहीं आएंगे ना? या देखिए, अब उसको जो है ना आप कुछ सिस्टम को टिपिकली एम्बेडेड सिस्टम का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो स्मॉल स्केल पे होता है, लेकिन अब जो है ना उसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वो हो गई है, क्या नाम है, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है। अब जो कॉन्सेप्ट हम एम्बेडेड सिस्टम में पढ़ेंगे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोग्रामिंग ओके करेंगे सर। सी प्लस प्लस या असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करेंगे तो किसी भी प्रोसेसर के लिए एप्लीकेबल है। तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना, दैट विल बी एम्बेडेड एंड अप्लाइड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब जो डेफिनेशन है ना, अब डेफिनेशन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेफिनेशन वेरी करती है ना चीज़ें की, हर चीज़ की डेफिनेशन जो इवॉल्व करती है। अब हम अगर डेफिनेशन में पढ़ना शुरू हो जाएं तो एक्चुअली फिर हम जो है ना, कोई बंदा एक चीज़ को एक तरीके से डिफाइन करेगा तो कोई बंदा उसको दूसरी तरीके से डिफाइन करेगा। जिस तरह से लॉ बनता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदे के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो दीज आर सब्जेक्टिव मैटर्स। ठीक है सर। ये जो है ये सब्जेक्टिव मैटर्स, जिसको आप क्लियरली एक वो बात नहीं कर सकते। जी एनी क्वेश्चन? यस सर। सर इज इट पॉसिबल कि बिल्कुल। हम प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के बगैर हम बना सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम? व्हाई नॉट, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के आप बेसिकली क्लासिकल जो है ना वो आईसी आती है, वो जो डेडिकेटेड आईसी होती है, आप उसको यूज करके वो एक सिस्टम बना सकते हैं। आप प्रोसेसर ठीक ही है सर। यूज ना, आप एक एंड गेट और गेट के जो चिप्स हैं वो थोड़े से इस्तेमाल करके उसको कनेक्ट करके कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन जो भी लॉजिक आप बनाएंगे, डिजिटल लॉजिक डिजाइन के एंड गेट्स और गेट बनाएंगे, वो एक लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई डिसीजन तो ले रहा होगा ना, या नहीं ले रहा होगा। जी सर। आपने कभी किया है कि जो आपने जो लॉजिक किया है कि आप एक्चुअली काउंट टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले की आईसी आती है या नहीं आती? जी सर। आती है। आप उसको प्रोसेसर पे भी कर सकते हैं और वो एक्चुअली वो चिप भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक डिजाइन में किया है या नहीं किया आप लोगों ने? किया है सर। किया है, बस ठीक है। तो इस तरह से जरूरी तो नहीं है कि आप एक प्रोसेसर ही यूज कर ले। प्रोसेसर का मतलब ये कि दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जो एक डिवाइस है, जो डिसीजन कोई लॉजिक होगी। चलो सही है, मैं प्रोसेसर को छोड़ दूं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लॉजिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक इट विल बी सम लॉजिक।
लॉजिकल कंपोनेंट दैट इज टेकिंग अ डिसीजन। समझ आई बेटा? जी सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं एयर कंडीशन सिस्टम, ठीक है। अब जो व्हाट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एयर कंडीशन सिस्टम, ठीक है। चाय भी नहीं बनी। अगर चाय बन गई तो इधर ही ले आए भाई। हाँ, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अच्छा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जी। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम के क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं? एनीबॉडी में आंसर जी। अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। So it means what can be main components of this air conditioning system? मतलब ये क्या क्या हो सकता है हमारे पास इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में? टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर होगा। So in air conditioning system we need a temperature sensor. उसके बाद कूलिंग के लिए जो पूरा सिस्टम ठीक होगा है, वो अलग। एक मिनट, we have a temperature system, ठीक है, sensor. We also have some source of input. You need some remote panel चाहिए ना हमें? यस सर। ठीक है, we also have some cooling unit. We can also have a heating unit. And if it is air conditioning or इन्वर्टर का तो कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता? तो हीटिंग सिस्टम भी होगा सर। जी, ठीक है। And actually you also need some kind of a processor that takes all these decisions. So actually the processor, so it means that you have a remote panel. So actually what you get the input, so you get the input from the remote panel. So it's a typical block diagram, एक small block, ये remote panel है, the input will be to some kind of a logical component, a processor. And now you will also have, like, if you ठीक है, ठीक है, रिमोट पैनल है, प्रोसेसर है, और क्या इनपुट हो सकता है जी बताएं? टेम्परेचर सेंसर, और जो एक्चुएटर क्या क्या होंगे आपके यहाँ पे? कूलिंग यूनिट, कूलिंग यूनिट, फैन वगैरह सर। कोई कूलिंग यूनिट है, आप उसको कूलिंग यूनिट कह दें, फैनिंग कह दें, कूलिंग यूनिट और हीटिंग यूनिट, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, और ये जो डिसीजन होगा कि टर्न ऑन द कूलिंग यूनिट और टर्न ऑफ द कूलिंग यूनिट, ये एक डिसीजन हो सकता है। ठीक है, इंटेंसिटी भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इंटेंसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि किस स्पीड पे करना है। इंटेंसिटी का मतलब है कि विच स्पीड, एट विच स्पीड, नहीं समझे? सर तो फिर ये डिवाइस तो यूजर कंट्रोल्ड है, तो फिर टेम्परेचर सेंसर का क्या रोल है सर? अच्छा, अगर आपने ये करना है कि मैंने रात में सोना है, अगर टेम्परेचर जो है ना वो एक लिमिट से कम हो जाए और बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ऑफ कर दें। तो इसका मतलब कैन बी इन द पावर सेविंग मोड। हो सकता है या नहीं हो सकता? जी सर, हो सकता है। ठीक है, so actually it's also configurable with the sensor panel. You give different options that in which mode you want to be in a power saving mode, or you want to turn on the complete. Even in your cars you have this auto eco idle. आपने कोई concept पता है या नहीं? eco idle जो cars हैं, इसमें एक option है eco idle कि whenever you apply brake to your car and the car is open, your engine will be turned off. Let's say अगर आप किसी इशारे पे, लेकिन you can also turn off that features. नहीं समझे बेटा? यस सर, जापानीज कार में होता है, कुछ कार्स में होता है ना। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह के यू कैन इंट्रोड्यूस वेरियस फीचर्स इन योर एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
And whenever you buy an air conditioning system, you look at that feature, okay, which features are available, and based on these specification of the air conditioning system, then you take a decision to buy an air conditioning system. A lot of parameters are there. So actually, you can also change the intensity. Let's assume that if the temperature is a threshold, अब ये एक threshold है ना, if your temperature is reaching near your threshold, so you can lower the intensity. If your current temperature is away from the threshold, you can increase the intensity. So it can be an adaptive system. Adaptive system का क्या मतलब है? Adaptive system adapt itself with the change in environment. लेकिन सर वो कंडीशन तो यूजर ने सेट की होंगी ना? यूजर ने यूजर नहीं चाहिए, लेकिन it adapts itself. It has, but user can turn off these other. So it means the user has the capability, has the option. User has the option to turn on or off the adaptive system. नहीं समझा बेटा? सर यूजर उसकी इंटेंसिटी भी हाई लो कर सकता है ना, कि उसे इतनी रिक्वायर्ड है। लेकिन उसमें जो इनपुट्स होंगे, उसके जो आपकी जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है, जरपति जो डिजाइनर जिस तरह से डिजाइन किया, आपने उसकी कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही करना है ना, कि क्या करना है आपने। अब उसने यूजर को, सिस्टम को कैसे पता कि वो तो खुद ये नहीं करेगा नहीं, इंटेंसिटी आप जो है ना मोटर की आरपीएम 50 आरपीएम पे कर दें या 80 आरपीएम पे कर दें, वो ये इस तरह के डिसीजन तो नहीं होंगे ना। नहीं समझे बेटा आप? सर मैं पिछली वाली एग्जांपल से रिलेट कर रहा था, कूलिंग और हीटिंग। I will explain this with an example. ठीक है? अच्छा, let's assume you have a car. You have 4 gears. Gear 1, gear 2, gear 3 और gear 4. अच्छा, gear 1 में आप हाई स्पीड पे चला सकते हैं? नो सर। हाई स्पीड में किस गियर में चलाते हैं आप? 4th में, 5th में। 4th में ना। तो एक्चुअली जो आपके जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है वो एब्स्ट्रैक्टेड होगा। वो आपको ऑप्शन किस तरह से देगा? The options will be like this, that you want to have a power saving mode, you want to have an adaptive mode. So these are the options. अब आपने उस ऑप्शन के साथ आपने कैसे वो करना है, वो इस तरह से नहीं करके वो डिटेल्स आपको नहीं बताएगा। लेट्स अज्यूम कि अगर आपके फर्स्ट गियर में होगा तो आपकी मैक्सिमम आरपीएम 20 आरपीएम होगी, जो टायर की होगी। जो सेकंड गियर में होगा मैक्सिमम आरपीएम जो है ना वो 40 आरपीएम से ज्यादा नहीं कर सकता, जितनी भी आप एक्सीलरेटर दबा दें। नहीं समझे आप? लेकिन सर जो कार्स होती हैं गाड़ी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि गाड़ी पे भी डिपेंड करता है। ये से गाड़ी के स्पेसिफिकेशन, ये जो चीजें होती हैं गाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि किस गाड़ी की इंटरनल डिजाइन होती है। लेकिन उसने आप कुछ, हर गाड़ी का ये होगा, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर होगा। कांसेप्ट सेम है ना। जो आरपीएम होगी वो इंटरनली चेंज होगी। इसी तरह से एक एसी है, हायर का एसी है, उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे। जो डिफरेंट कंपनी का एसी होगा उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन इंटरफेस होगा ऑलमोस्ट सबका लुक सम विद सम स्लाइट चेंजेस। डू यू एग्री और नॉट? ओके सर। यस। ठीक है, गुड. Okay, so now we get to an example of, similarly we have a microwave oven. So microwave oven जो अगर हम बात करते हैं ना माइक्रोवेव ओवन में, तो माइक्रोवेव ओवन पे जो अगर आप करते हैं माइक्रोवेव ओवन में आपको क्या होगा? डेफिनेटली यू नीड सम काइंड ऑफ प्रेशर सेंसर तो होगा या नहीं? टाइमर होगा या नहीं होगा? टाइमर होगा। अच्छा, मोड्स भी वो डिफरेंट होंगे कि आपने बारबेक्यू करना है, ग्रिल करना है, क्या होंगे। तो इस तरह के जो है ना फीचर जो है ना वो इसमें अवेलेबल होंगे। सर इसमें टेम्परेचर सेंसर कैसे आएगा? टेम्परेचर सेंसर हो भी सकता है कि अगर आप जो है ना अगर हीट इतनी ज्यादा हो जाए तो फॉर सेफ्टी रीजंस और नॉट। सर वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि टाइम जितना ज्यादा होती है लेकिन ये है कि अगर इंटरनल टेम्परेचर इतना ज्यादा हीट अप हो जाए कि मतलब पे वो जो डिवाइस के लिए सेफ ना होगा, तो उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे आपने बीच में जो है ना एक चमचा रख दिया। टिपिकली ये कहते हैं ना कि चमचा बीच में नहीं रखना। जी सर। ठीक है, अगर चमचा हुआ उसकी वजह से टेम्परेचर इतना राइज हो गया, इस तरह की कोई चीज हो गई, तो हो सकता है या नहीं हो सकता?
जी सर, हो सकता है। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन द डिजाइनर। जब आप खुद डिजाइन करेंगे ना, जब आप अपना खुद फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो फिर आपने ये सारी चीजें को देखना है, कैटर करना है ना, आपने तो सोचना है ना। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा माइक्रोवेव ऑन। अच्छा, अब जो है ना लाइन ट्रैकिंग रोबोट, लाइन ट्रैकिंग, does anybody have an idea what a line tracking robot is? सर एक सी मदर की लाइन को फॉलो करते हैं। Yes, very good. पास सर कलर सेंसर्स इसमें यूज होते हैं सिंपली। Yes, it can, there can be some kind of a sensor. Yes, color sensors. You are right. So actually, line tracking robot, अगर हम कहें ना, तो line tracking robot follows a line. Follows a line. So now let's assume you have you have this. I'm trying. Let's assume we have some line. Is there any option for black? Yes, yes. So let's assume there's a line. Is a line. Okay. It's a line. So we can design a system or an embedded system that will follow this line. अच्छा, अब देखो यहाँ पे देख लें, अगर आप यहाँ चेक कर लें तो क्या आपके पास है? color line. sensor. So it follows the line. So you need a color sensor. Yes. So यहाँ पे आप ये चेक करें, ये बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड, the background is white. Line is black. यही है ना? अच्छा, यहाँ पे Yes, sir. लाइन ट्रैकिंग रोबोट के फीचर्स क्या है? अच्छा, ये बताएं कि when should it go straight? सर जब तक वाइट बैकग्राउंड होगा। When it should go straight? When Sir, the white black back- line is straight. नहीं, अब now what we can do? अच्छा, to design such kind of a system, we can have a very simple. We can have very simple kind of a system. We can have one motor. We can have a motor. Okay, we can have a motor here. अच्छा, मैं यहाँ पे draw करूँ जी. We can have a motor here. Okay, and we can have two type of sensors. ठीक है, मेरे पास कितने सेंसर होने चाहिए? 2 सेंसर्स होने चाहिए. एक लेफ्ट सेंसर and other right sensors. We can have two kind of sensors, left sensors and right sensor. अच्छा, सेंसर की इनपुट क्या होगी कि अगर so it is a very small specification, so we can say that okay, let's assume left sensor is equal to 1 when the robot is on the black line, otherwise left sensor is equal to 0. The same is true for the right sensor. नहीं समझे बेटा आप? ठीक है, हो जाएगी बेटा आपको? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, what about right sensor? सर ये LS1, ये बताइएगा सर, ये LS1 when robot उस ब्लैक, ये लाइन बता दें, क्या समझ नहीं लगी? अच्छा, when the robot is on the black line, otherwise right sensor is equal to 0. नहीं, मिसाल के तौर पे अब देखें, ये जो लेफ्ट एंड राइट सेंसर है, नाउ इट्स एक्चुअली व्हेन यू हैव अ रोबोट, सो रोबोट में नाउ यू हैव अ रोबोट. अच्छा, रोबोट की जाहिर बात है, जब रोबोट लाइन ट्रैकिंग रोबोट होगी तो उसके पास 2 व्हील्स भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे. ठीक है, वन विल बी द लेफ्ट व्हील एंड वन विल बी ऑन द राइट व्हील. ठीक है, यस सर. ठीक है. अच्छा, अब व्हेन शुड इट गो स्ट्रेट? अच्छा, मुझे बताएं कि व्हेन, अब हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज है. ls is equal to 1 and rs is equal to 1. So what does it mean? Straight line. Yes, both sensors are on the line, so it means the line is straight, so you should go forward. Robot
should go forward. Am I right or not? It means that the line is straight. When the line is straight, so it means you should go forward. Okay. Now, what is the scenario when left sensor is 1 and right sensor is 0? What does it mean? सर फिर ये straight line पे नहीं It होगा. will turn left. So we should go what? Left or right? Left. Left. A little bit left. ठीक है? लेफ्ट होना चाहिए राइट होना चाहिए, ये बताएं. लेफ्ट. ठीक है. एंड सिमिलरली एंड LS is equal to 1 and RS is equal to 0 and RS is equal to 1. What should the robot do now? Sir, right. It should supposedly go right. And when both are 0, then बताएं. It will not move. No, it should track the line. Track or search the line. Am I right or not? समझे? सर ये तो डिपेंड करेगा ना, हम फिर उसकी प्रोग्राम. सर इसमें भी स्ट्रेट जा सकते हैं ना फिर. सकते हैं, वेरिएट कर नहीं, सकते हैं. वो तो बात की बात है ना. ट्रैक और सर्च द लाइन. अब देखिए, अगर लेट्स अज्यूम इफ द रोबोट इज हियर, व्हाट शुड इट डू? नहीं समझे? अगर ये स्ट्रेट जाएगा, आप ये कहेंगे स्ट्रेट जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, विल इट फाइंड अ लाइन? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. नो सर, वहां पे तो नहीं मिलेगी. वहां तो नहीं मिलेगा. अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर इट विल गो डाउनवर्ड्स, इट विल फाइंड द लाइन. ओके फाइन. बट इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन, इवन डाउनवर्ड, विल इट फाइंड द लाइन? नो सर. No, sir. So what should be the inefficient algorithm for searching the line? What can be an efficient algorithm for searching the line? इस सिनेरियो में, मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. ये जो सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो. What should be the efficient algorithm? क्या होगा? सर ये तो लाइन पे डिपेंड करेगा ना, लाइन कितनी दूर है रोबोट से. क्या कह रहे हैं? नहीं तो आप efficient algorithm से सोचे ना. ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप प्रॉब्लम को एक सर्कुलर पाथ. Very good. So you can move in a spiral motion, not circular but spiral. Spiral इतना बेहतर होगा या नहीं? इस तरह से नहीं समझे? यस सर, ये ज्यादा बेहतर है. ज्यादा बेहतर है ना. You move in a spiral way, and actually whenever if you're here, if you move in a spiral way, you will reach here. Even from here, if you move in a spiral way, you will reach here. नहीं समझे बेटा? जी सर, ठीक. नो सर. समझ गए. हाँ, क्या कह रहे हैं? सर एक दफा सर रिपीट कर दे सर ब्रीफली. अच्छा ये बताएं. अच्छा आप बेशक शायद सुन नहीं रहे थे. लेट्स अज्यूम योर रोबोट इज हियर. अब ये ग्रीन नजर आपका आ रहा है, ये जो कर्सर नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर एरो जो नजर आ रहा है हीट के साथ. यस सर. अच्छा, अगर आप इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करेंगे, क्या आप विल यू फाइंड द लाइन? इफ यू मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड. अच्छा, तो इवन इफ यू गो डाउनवर्ड, योर पोजीशन इज ऑन द लेफ्ट. ये जो लेफ्ट है ना, ये जो मैंने पिंक लिखा हुआ है ना, अभी मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. विल यू फाइंड द लाइन इफ यू गो इन अ स्ट्रेट पाथ? नो सर. Okay, so how you can find a straight path? You can find a straight path if you have a spiral way. So, okay, it means that LS is equal to 0, RS is equal to 0. It means that the robot is not on the line. It means you need to search the line. Whenever you reach that subroutine or function, you can move in a spiral way. So that's the spiral motion is now showed in a green color. So at this point, when you reaches at this point, so the finally robot has found the line. समझ आई बात या नहीं आई? Yes sir. Yes sir, आ गई. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो नीचे है, ये let's assume your current position is here. Yeah, your current position is here, and now you move in a spiral motion.
At this point you will find the line. नहीं समझे बेटा? सर अब समझ आ गई. अच्छा अब let's assume if you're at this point and now I am drawing it with the yellow color. अगर मैं स्पाइरल में करेंगे तो when you will find the line? When you reach at this point. नहीं समझे बेटा? आगे समझ सर अब. ठीक है, अब देखिए ये सारी. अच्छा ओके, सो नाउ दिस इज द सिनेरियो एंड इन दिस केस. अच्छा अब ये जो है ना फाइंड है. अच्छा ये बताएं कि लेट्स अज्यूम, अब आप क्या कर सकते हैं. अब देखो व्हेनेवर ये जो है ना व्हेन L is equal to 1 and R is equal to 1 you go forward. It's very simple. But when one sensor is on the line and another sensor is not on the line, how you can ensure that one line should be, how you can go left, how you can go left or how you can go right? सर लेफ्ट तब होगा ना जब राइट सेंसर 0 हो जाएगा और राइट तब होगा जब लेफ्ट सेंसर 0. ना वो तो ठीक है ना, लेकिन रोबोट शुड गो लेफ्ट. इट मीन नाउ यू हैव सम मोटर्स. आपके पास एक मोटर है, ठीक है, आपके पास मोटर्स है और जो मोटर्स है दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड, दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड. राइट और लेफ्ट नहीं हो सकता उसमें. तब कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आई एम नाउ राइटिंग. क्या करें सर? एट अ टाइम स्टॉप कर देंगे दूसरे को. वेरी गुड, very good. So let's assume a scenario. Assume a scenario when the motor can only move in forward direction. If you want to go left, so how you can do to go left? What you can do? Stop the right motor or left motor? Left motor. Right motor. राइट और लेफ्ट है. अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसको चेक, यानी आप उसको वन को स्टॉप करेंगे. लेफ्ट स्टॉप होगी सर. लेफ्ट स्टॉप होगी, यस. लेफ्ट और राइट एंड मूव द राइट एंड लेफ्ट. समझ आ गई बात? ये नहीं आई? यस सर. मोटर तो एक ही जो सर अगर हम राइट मूव करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट को स्टॉप करेंगे ना? हाँ लेफ्ट को स्टॉप करेंगे. हाँ यस ठीक है. राइट को मूव करना चाहते हैं, हाँ लेफ्ट को स्टॉप करेंगे. लेट्स अज्यूम टू गो लेफ्ट. एक्चुअली इसको इस तरह से करेंगे टू मूव द स्टॉप द राइट एंड मूव द. ऐसे काम करें, छोटा सा इसको एग्जांपल देख लेना आप. छोटा सा वो कर लें मोटर, उसको चेक कर लें. हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइन को फॉलो कर रहा है? किसको? लाइन को फॉलो कर रहा है, ब्लैक लाइन को. तो ये वो आपके पास सेंसर्स है, 2 सेंसर्स है, लेफ्ट सेंसर राइट सेंसर. आपको ऊपर नहीं बताया मैंने? सर बताया तो लेकिन सर फोर्थ केस जो आपने 0-0 का बताया था कि वो लाइन को डिटेक्ट करेगा बाय स्पाइरल मोशन से. अब तो जो स्पाइरल मोशन का आपको कैसे डिवाइड करें? देखिए स्पाइरल मोशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप ये देखें उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट राइट में. अब देखिए स्पाइरल मोशन आप कर रहे हैं बेशक, देखिए ये स्पाइरल मोशन है, आप मूव स्ट्रेट कर रहे हैं फिर मूव राइट कर रहे हैं. स्पाइरल मोशन को इस तरह भी कर सकते हैं. अच्छा इसको मैं और भी इलेबोरेट कर सकता हूँ. इसको इस तरह ना करें, चलो स्पाइरल को ना करें, चलो थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं आपके लिए, ठीक है. अगर हम इसको इस तरह से कर ले बेटा मेश के फॉर्म में कर ले, ठीक है, ड्रॉ. अगर हम इसको इस तरह से कर ले, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, अब ठीक है या नहीं है? ठीक, यस सर. ठीक है. उसमें क्या फायदा होगा? इसमें देखें राइट डाउन, ठीक है, यस सर. लेफ्ट, इस तरह से आपको कर सकते हैं. ओके सर. अच्छा देखिए 2 डिफरेंट चीजें. अब पॉइंट ये है कि अब आपके पास देखें, व्हेनेवर यू विल बी गोइंग टू डिजाइन एन एम्बेडेड सिस्टम, you must know the capability of the devices that you are using. आपके पास अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए कि आपकी जो डिवाइसेस इसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है. लेट्स इफ यू वांट टू गो फॉर अ वेरी चीपर सिस्टम, आपने चीपेस्ट कंपोनेंट्स लगाए. अब एक ऐसी मोटर जो कि सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकती है, ठीक है, और एक ऐसी मोटर है जो कि एंगल पे भी मूव कर सकती है. विच मोटर विल बी एक्सपेंसिव? एंगल वाली सर.
एंगल वाली एक्सपेंसिव होगी। अब आपने अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्पेसिफिकेशन ये है कि नहीं आपने यही मोटर यूज करना है, ठीक है। तो एक्चुअली अब देखिए दो डिफरेंट चीजें हैं। whenever you plan your life or anything, you have to be very much adaptive. You have to be very much adaptive. Let's assume आपका जेब खर्च जो है ना 3,000 रुपए। अडेप्टिव में क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता खर्च करेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि पहले दिन जो है ना वो पिज़्ज़ा हट चले गए और सारे पैसे खा लिए, ठीक है। लाइफ में yeah, so even when you will be going to design a system, so you have to also see your budget. What's your budget? And based on that budget, how can I reduce the cost of the system? A lot of factors are there. आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, यूजर की कॉस्ट क्या पड़ेगी, डिजाइन की क्या कॉस्ट होगी, ये सारे these are the constraints that you can make. So whenever you will be going to design a system, you should know the properties of the components that you are using, and that and also it will also help you which component to choose for a particular design. फिर आपने ये भी तो करना है ना कि कंपोनेंट कौन सा खरीदूं। ये तो नहीं कर सकते ना कि आप वो एंगल वाले सेंसर भी ले लें और फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले सेंसर भी ले लें। समझ आई बेटा या नहीं आई? सर आ गई। सर यूजर फ्रेंडली अडेप्टेड सर्किट्स होंगे ना? क्या कह रहे हैं? यूजर फ्रेंडली मतलब जो यूजर के लिए बेहतर होगा कि उसका वर्क भी हो, टास्क भी हो जाएगा, कि टास्क भी हो जाए, उसके बजट में भी आ जाए, आपकी डिजाइन कॉस्ट भी होगी, तो बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर्स होती हैं। ओके सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर ठीक है, अच्छा, okay, so now it's a line tracking robot. In the next class we will study like how we can, अच्छा आप लोगों से सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा मैं फिर जिस तरह से ना मीटिंग जो है ना कर लूँ। कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेंट? 69 पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा कुछ लोगों ने अभी जो है ना वो कुछ लोग अभी सीआर किधर गया? सर सीआर हमजा है, वो कह रहा है कि उसका माइक का इशू है। माइक का इशू है, अच्छा। हमजा अजहर। हमजा अजहर, उसे कहें कि अगर अगली दफा माइक का इशू है ना हमजा अजहर। दूसरा सीआर किधर है? सर मैं हूँ सर, ए सेक्शन। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अब जिसको मैं कॉल करूंगा और उसका माइक काम नहीं कर रहा ना, तो या तो अपना माइक ठीक कर ले वरना उसकी एब्सेंट लगेगी। ये याद रखें, ये रूल है, ठीक है। या तो अपना माइक ठीक कर ले, अगर माइक का इशू है तो अपना माइक का मसला हल करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हमजा अजहर से मैं पूछूंगा और उबैद हारून आपसे मैं पूछूंगा। अगर आप लोगों का माइक का मसला हल करे, अगर माइक का मसला हल नहीं हुआ तो फिर मतलब ये कि आपकी जो है ना यू विल बी ऑन माई वॉच लिस्ट, और मैं हर क्लास में मेरी वॉच लिस्ट पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे और मैं उनको क्लोजली मॉनिटर करूंगा, ठीक है। और आई मैं रैंडमली कॉल एनीबॉडी, और जो नहीं है उसकी एक तो अटेंडेंस मिलेगी और दूसरी बात है वो मेरे वॉच लिस्ट पे भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, क्लास का जो कलेक्टिव बिहेवियर अगर किसी ने यानी थोड़ा सी शरारती करना शुरू कर दूं तो पूरी क्लास की जो ग्रेडिंग है वो कम होगी, ये बात याद रखें। वो मर्जी आपकी अपनी है बेटा, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर।